Uh, I'm working in an IT company in data technologies. Okay, thank you. Alok Shaman, Sasman, sorry. Alok, Yeah, hi guys. This is Alok Shashmal. I'm part of a private equity company, location you are from? Calcutta. Okay, thank you. Anup Sharma. Hello everyone, this is Anup. I'm from Dibrugarh, Assam, and I'm working with my startup known as Technomechanics. Thank you. Rishabha Sancheti. Hi, hello, hello everyone. I'm Rishpa Sanchepi from Ghaziabad, Delhi. I'm founder of Jobito Services, it's a recruitment company, and also working on some other startups. Okay, thank you. Thank Abhishek Janta. Hello, myself Abhishek Kumar from Janta Group. I am from Bihar. Thank you. Divesh. Sir, I'm from Jodhpur. I'm a businessman. Thank you. Piyushi Agarwal. Your mic connected. Your mic is not connected. Please connect your mic. Yeah, Yogesh. Please introduce. Hello everyone. Hello. Hello. Yeah, we can listen. Yeah. Hello everyone. I'm Yogesh Bhatti. I'm from Jodhpur, Rajasthan. I'm pursuing MBA from LMC Jodhpur. Thank you. That's me. Thank you. Aman. Hello, Yes, I'm Aman. listening, sir. I'm Yes. audible. Yeah. Yes. Okay. Hi, I am Aman Raj Basho. I am from Chapra, Bihar. I am currently for last pursuing Bachelor of Arts from University of Allahabad. Thanks. That's for my introduction. Okay. Thank you. I am ABY. Please introduce yourself. Hi Vishal, hi. How are you doing? Good evening, everybody. I'm Abhishek from Manipur again. Okay. I'm just renaming you so that. Piyushi, I think you are connected with the mic. Yes, please introduce yourself to the people. Yeah. Arpana Shah, I think your mic is not connected. Please connect. Samrati Kushwaha, since your mic is also not connected. Atul sir. Hi everyone. Sorry, my name is Atul Kumar. I am based in San Jose, California, and I am a lost soul. Thank you. Thank you. Anybody left for introduction? I think everyone. Anyway, I think some people might be joining later, so we'll see their introduction later. Okay, so today's topic is for the regarding the economy slowdown which is happening now, and what can a common person do. So listed some agenda points in the chat box. I'll just copy it again so that people who joined it can see it also. So yeah, so like the thing is, what can common man do? So I think what we have seen is the very first point that we have put is this alcohol business. That we saw that government has allowed the liquor shops to open, and if people buy more and more alcohol, so that can boost the uh, economy or cash flow in some to some extent, right? So, what do you think about this? Maybe we can start from Atul sir only. आप बताइए sir. So, in my personal view, Vishal, I feel this alcohol ban removal was a disaster, and I guess we should follow the Gujarat model: no alcohol. I mean, alcohol. If you want to drink it inside, but some restrictions need to be there.
no alcohol outside the home because of the bad experiences, especially in the time of Corona. Because if people are gathering because of alcohol, it will create a lot of risk. Normally, alcohol you drink in a group and in the community, so that's a dangerous thing. As far as the effect on economy is concerned, if alcohol is the main source of your income, that means something you're not doing right. Like in Delhi, alcohol was the major source of revenue for the government, and that's why they opened it and all that hangama happened. So I'm very, very what many other places did is actually used in the COVID crisis. They used the alcohol, what do you call, breweries. They use their alcohol capacity to actually convert that into making some COVID related stuff. So I think that would be a good use, because you need for alcohol similar material. You also need is many health situation as well. The alcohol, though the spirit is also as a disinfectant and many other utility. So I think all of them should be diverted back to under the supervision of medical hospitals and doctors. They should decide how to use their alcohol infrastructure, their raw material, everything else. Can we channelize that into some other industry? No offense to people who love to drink. I mean, I occasionally I also drink on a social occasion, but at this time of crisis, I feel alcohol is going to be very dangerous for India. Okay, thank you. Abhishek Janta, कुछ comment alcohol economy पे? है, इकोनॉमिक है, पर वो मजबूरी भी है गवर्नमेंट का, क्योंकि उसको भी पता था कि मतलब ओपन करता है तो वो गैदरिंग होगा। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं था। हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिकली के लिए वो किया सही है। अच्छा बिजनेस, इस पे हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोले, क्योंकि ना कर नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आई थिंक एक चीज क्या निकल रहा है कि बिना अल्कोहल के जनता शायद रह गई, गवर्नमेंट नहीं रह पाई। ये चीज बहुत अच्छा वायरल हो रहा था कि मतलब पब्लिक बिना अल्कोहल के रह सकता है, लेकिन सरकार नहीं रह सकता बिना अल्कोहल। बंद नहीं होने वाला। तो बिहार में अल्कोहल बैन है, गुजरात में बैन है। अतुल सर तो गुजरात की इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है और बिहार की इकोनॉमी, बिहार में ऑफिशियली बैन है ताकि गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो पाए, नहीं तो होम डिलीवरी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आते हैं और बाकी लोग का ओपिनियन लेते हैं। यस मिस्टर राहुल बगरिया, व्हाट डू यू थिंक दिस अल्कोहल इकोनॉमी, लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? Alcohol is hello, am I audible? Yeah, you are audible. Yeah, alcohol is a part and parcel of economy. It cannot be the entire economy. अभी क्या हो रहा है कि अल्कोहल को ही पूरा इकोनॉमी बना दिया जा रहा है। So that should not be the thing. It should be a part and parcel. से कुछ एक परसेंटेज एक उससे अगर इनकम डिराइव हो रही है, then उसको लेट गो करना भी उतना इजी होना चाहिए। जो आपने एक पॉइंट कहा ना कि अल्कोहल से इकोनॉमी चल रहा है, ये बहुत सही बात है। अभी ये अपन को ऐसा दिखने में आ रहा है कि द कंट्री दिखाया गया हमें, भाई ऐसा मजबूरी था कि करना ही पड़ा है, करना ही पड़ा। तो अल्कोहल एक इकोनॉमी का पार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ तो अल्कोहल को पूरा इकोनॉमी ही बना दिया गया है। स्टार्ट ऑफ इकोनॉमी किक ऑफ करने के लिए। जी जी जी, ठीक है, ओके। या मिस्टर नीरज शर्मा, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, लाइक व्हाट डू यू थिंक? श्योर विशाल। सो मैं थोड़ा सा इसके बारे में जीएसटी से स्टार्ट करना चाहूंगा। ऑनरेबल अरुण जेटली जी ने इंडिया में जीएसटी बहुत ही लंबे समय की मेहनत और मतलब काफी पुराने टाइम से डिस्कशन हो रहा था, एंड ही टुक दैट बिग स्टेप टू गो फॉर जीएसटी। बट स्टिल दो पर्टिकुलर एंटिटीज को जीएसटी से बाहर रखा गया। वन इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अदर इज अल्कोहल। और इसका मतलब यू कैन सी लाइक इसी चीज से हम समझ सकते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमी में। डेफिनेटली ये दोनों इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। अगर हम
रेवेन्यूज की बात करें गवर्नमेंट के लिए, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए या इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। तो क्योंकि कहीं ना कहीं जीएसटी में लिमिटेशन है कि वो 40% का एक जो टॉप स्लैब है वो है, और हम अगर 40% के अंडर इन दोनों चीजों को कंटेन करने की कोशिश करेंगे तो देयर विल बी ह्यूज लॉस, जो कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है। तो डेफिनेटली ये एक मतलब हम नहीं कह सकते कि अल्कोहल कोई ऐसी जरूरी चीज नहीं है, इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए बहुत ही बड़ी जरूरी चीज है। और इट्स नॉट ओनली द ड्रिंकेबल थिंग, जो इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं इस इंडस्ट्री के वो बहुत जगह काम आते हैं। उनकी यूटिलिटी मेडिसिन से लेके और बाकी काफी इंडस्ट्रीज में एज इंग्रेडिएंट टू सम केमिकल प्रोसेसेस भी है। तो अपने आप में काफी बड़ी इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं इसको चालू रखना बहुत जरूरी है। और इस प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं अगर हम कुछ कंपोनेंट्स को छोड़ दें तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स की कुछ लाइफ भी बहुत कम है। लाइक बियर 3 to 6 मंथ की लाइफ होती है। तो बॉटलिंग के बाद वो जो प्रोसेस है उसको अगर कंज्यूम नहीं किया गया तो ये प्रोडक्ट खराब भी हो जाता है, तो जो कि अगेन एक बहुत बड़ा लॉस है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ओपन करना जरूरी था, पर हाँ इसके साथ जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या जो हमारा बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सारे जो भी हैं, उनसे भी रेवेन्यू जो जिस तरह से आना चाहिए उस पर गवर्नमेंट को बहुत फोकस करने की जरूरत है। डेफिनेटली इंडिया में कंपेयर टू पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है। अदर सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर है या और भी कुछ मतलब अपना कपड़ा उद्योग है या हैंडलूम का जो मतलब जो ऐसे काम हैं जो कि एक पुराने टाइम से इंडिया में हो रहे हैं, उनमें लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। लेदर इंडस्ट्री है, तो वहां पे गवर्नमेंट को डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। अल्कोहल इज वन थिंग जो कि होना जरूरी था मुझे लगता है, बट क्योंकि एक ऐसी बदनामी वाली चीज है तो इसका फैलता भी जल्दी है और लोगों ने उसी टाइप से इसको समझा कि शराबी मरे जा रहे हैं इसके बिना, इसलिए गवर्नमेंट ने खोल दिया। दैट्स वन थिंग, मान सकते हैं, हंसी मजाक के लिए बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बट देयर आर मेनी अदर वैलिड रीजंस टू इट व्हिच आई थिंक। करेक्ट आई मीन इट वाज सीन कि सबसे पहले उसी को स्टार्ट किया गया, बाकी सब कुछ छोड़ दिया गया, लाइक हाईएस्ट प्रायोरिटी पे था, राइट। somehow that was not very well digested by people. Okay, moving to the next person, Mr. Anup Sharma, are you yes sir, yes please, would you like to add something, आपका कुछ कमेंट अल्कोहल इकोनॉमी पे? हाँ, मुझे क्या लगता है कि मतलब अभी शॉर्ट टर्म के लिए इससे हमें थोड़ा कुछ अपलिफ्टमेंट मिल सकता है, बट अगर हम लोग लॉन्ग रन में देखें तो इसके कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग ने देखा जब से कोविड-19 हुआ है तब से डोमेस्टिक वायलेंस इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर हम लोग इस तरीके से अल्कोहल में अगर बैन हटा देते हैं तो ये होता है तो और ज्यादा होने का संभावना है, और सोशल गैदरिंग ये सब भी ज्यादा होगा जिससे कि हमें नेगेटिव कंसिक्वेंसेस फ्यूचर में झेलना पड़ सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें बैन रहना चाहिए जब तक ये शांत नहीं हो जाता है। Just want to add one point विशाल here. मैं बहुत सारे शराबियों को जानता हूँ, बहुत अच्छे लेवल के शराबियों को जानता हूँ, और मुझे जितना पता है एक भी शराबी ऐसा नहीं था जिसको लॉकडाउन में दारू नहीं मिली। उसको मिली है 100 रुपए वाली चीज 500 में मिली है, लेकिन मिली है। तो जिसको पीनी है उसको आप रोक नहीं सकते हैं, ना बिहार में रुक पा रहा है वो, ना गुजरात में रुक पाता है। करेक्ट, सही बात है। ठीक है, आई थिंक वो जो छुप छुप के बहुत कुछ होता है, आई गेस पीपल आर accepting that. So openly होने लगता है तो people start saying things. Yes, Rishaba, you just one more thing. I am from सोनीपत। सोनीपत में पूरा का पूरा L1 का गोडाउन, जो कि मतलब मेन डिस्ट्रीब्यूटर होता है सिटी का, उसका पूरा का पूरा भरा हुआ गोडाउन खाली हो गया है लॉकडाउन पीरियड में, और गवर्नमेंट इधर उधर घूम रही है, कुछ किसी को ये पता नहीं है गई तो गई कहाँ। अच्छा, पूरा अल्कोहल खत्म हो गया है फैक्ट्री? पूरा जो मेन गोडाउन है, जो मेन जो पूरा मेन डिस्ट्रीब्यूटर है सोनीपत का, ये न्यूज में भी है, बड़े लेवल पे न्यूज में है ये चीज, और उसका L1 वाले का पूरा जो मतलब मेन डिस्ट्रीब्यूटर था डिस्ट्रिक्ट का, उसका पूरा भरा हुआ गोडाउन खाली मिला है अभी बाद में। Okay, yeah, okay, yes Rishaba, you have a comment, you have raised your hand. Yeah, feel free to raise your hand if you want to speak more on this. Yeah, yes Rishaba.
Actually, the one thing I say हमारे मैंने आसपास देखा है कि मेरे एक नॉन में एक की डेथ हो गई जस्ट बिकॉज कि उसको वो डेली पान मसाला या समथिंग कुछ खाता था, तो उसको अब नहीं मिल पा रहा था, तो काफी दिनों से नहीं खाने की वजह से उसके हार्ट अटैक से डेथ हो गई। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ था। तो जो ये लिकर इंडस्ट्री है या दारू या फिर ये जो रजनीगंधा जो पुड़िया वगैरह है, और ये सब जो यूज करना जब स्टार्ट कर देते हैं तो लोग ऐसा होता है कि उसके बिना रह नहीं पाते। अगर वो नहीं मिलती है काफी दिनों तक तो फिर वो हो जाते हैं, डेथ भी हो सकती है उसकी। तो मैं भी उनके लिए सही हो खोलना, है ना। Yeah, sure. I think what you are talking is very extreme. It was a force we have on people, which some people may have misused. Though, but let's hear from other people. Anyone wants to talk more on this alcohol economy? Hi. Mr. Karthikeya, you want to say something? Yes, Pallav. Hi. Yes. Hi. Can you hear me? Pallav. Yeah. Yeah. You. So, starting with, I can say I'm in support of alcohol opening. Or giving you the background, I'm not very much sure about the intentions of government. I think what the government thinks and what he executes are two different things, and I'm very much skeptical about this. They didn't have done a single project executed properly. So I'm not very sure, but opening of alcohol is important because I think it's the only industry which is working for now, which is giving at least some revenue. तो उसके पीछे पड़ जाना गलत है। हाँ, एग्जीक्यूशन खराब है, वो तो फोटे है बीजेपी का, वो एग्जीक्यूशन तो हमेशा से खराब रहा है। तो it's going more political, Vishal. I think political नहीं, let's just talk very general. It's just my views. मतलब अगर यही मैं अगेंस्ट में बोल रहा होता तो बहुत इजीली लोग उसको बहुत सपोर्ट कर रहे होते, तो ऐसा नहीं है। तो आई एम सेइंग कि जैसे हिपोक्रेसी तो है ही, कुछ नहीं बोल सकते उसका। आपने गवर्नमेंट कर्नाटक वाला केस देखा ही है, कहाँ फियास्को में अब मजदूरों को 2 महीने तक कुछ खाना बिल्डरों ने नहीं दिया है, और 2 महीने बाद जब वो जाने लग गए तब उन्हें लगेगा कि अब काम कैसे होगा। तो ये सब चीजें हैं कि एग्जीक्यूशन खराब है। बेटर ये है कि जो चीज आपको रेवेन्यू दे रही है उस पे फोकस करें। और अभी तो आप देखिए, आपने 70% सेस लगा दिया, कई स्टेट्स में 75% लगा दिया, और इट इज अ न्यू नॉर्मल। आप देखिए कभी ये रेट्स वापस नहीं होने वाले। ये रेट्स ऐसा नहीं है कि कोरोना ठीक हो जाएगा तो वापस नीचे आ जाएगा, या फिर शराबी जो है वो सड़कों पे आके उसको बोलने लग जाएंगे कि नहीं इसको कम करो, कभी नहीं होगा। और लोग एज अ नॉर्मल इसको लेने वाले हैं। तो मेरा व्यू ये है कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट को अभी यही दिख रहा है कि यहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, तो एटलीस्ट इट्स गुड, और इसको रखना चाहिए। बस ये है कि होम डिलीवरी और ऐसे जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, वो एग्जीक्यूशन को ठीक करने का अभी भी लेना चाहिए, और आगे के प्रोजेक्ट्स को भी ध्यान रखना चाहिए। मेरा ये कहना है। ठीक है, तो इसमें यस अभिषेक, यस मैं एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, यू कैन आल्सो आंसर दिस। तो अगर इससे इकोनॉमी, अच्छा रचना, यस आई थिंक अभिषेक कैन स्पीक, देन यू कैन स्पीक। मैं एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ कि अगर इससे पैसे ही कमाने थे 70% की 700% ही कर देती गवर्नमेंट। यस अभिषेक, देन रचना कैन स्पीक। यस अभिषेक। I am agreeing with what little bit with all of what everybody is saying, but it was very, because we wanted to do tax collection right now, so that because the tax that will be realized now will be in our treasuries by next 2 to 3 months. So we are anyway running in a lot of deficit. In order to do this tax collection now, we had to open an avenue where things would go, which would help us get a huge sum of revenue. I mean, collection of tax. So imposing heavy duty taxes, 70, 30, whether in different states accordingly. Yes, it has generated a lot of revenues. It is not that it has not generated, which will be realized after 2 to 3 months. Yes, I little bit agree with all of us that the way things had gone, the desperation shown by us, we could have calmly, I mean, we could have got it more channelized. We could have forms of delivery, we could have forms of other mechanisms to deliver it. Somebody spoke very rightly about how supporting ancillary industries. Because of the local brewery productions in our country, we were having a lot of sugar problems. Sugars, when the molasses and everything, and power generation was not happening because of liquor not being produced, because वो sugar से extract नहीं हो रहे थे molasses.
So that was also a huge problem. Government was keeping an eye on those aspects also, and yes, they have done it. But overall picture really got bad because of our desperation. But yes, but one thing is like what you guys rightly started. We can live without liquor, but the government cannot live. Yeah, I think this one also is debatable. So मैंने comment हुआ. Yes, Rachna, ma'am, बताइए. Alright. What do you think? So I might be having an absolutely different opinion on it. Yeah, your voice is a bit low. Maybe you can come closer to the mic. So Yeah. my opinion could be very, very different, or could be so it comes from a space where we as an individual today have to stand up with the economy, right? And as I mean that whatever in the capacity, whatever small business or big business or an industrial business that we all do in our own capacities, because however we are earning our livelihood, we need to know that what we can do to contribute towards the economy. It is very by far we've been blaming everything on the government कि government ने execute नहीं किया, government ये नहीं दे रही है. There are a lot of reforms which have come in past days. How many of us have been trying to utilize? So I'm just bringing in a point. RBI released certain amount of money to the banks. What did the bank do with the money? The bank went and paid back the money to the RBI to reduce its own credit, right? The money did not trickle down. So this trickling down is not coming in because I think somewhere as a nation we have failed to even ask for it. We always go and complain to the higher authorities कि हमको ये services दो, हमको ये services दो. जब आप अपनी local government से ये services नहीं मांग कर सकते हो, तो फिर आप कैसे reach out करोगे? If you had asked banks को जाकर के आप बोलो कि आपके पास भी तो ये रुपया आया है, because the government has very transparently told out that RBI is releasing so much of money to the banking sector. Why doesn't the industrialists now take the benefit of the same? So if there are systems which are created, who is to take benefit from it? So it's basically like, there is buffet of services. It is for us to choose which is good for us. So are that's we? Correct. Are we as but an is the individual buffet also accessible? making? That's the question. Yeah. So how do you make it? हुआ है. So how do you make it accessible? The person sitting at the top of the pyramid says this is accessible, you can get it. But the person in below, because of the bureaucracy, the chain is not coming down. But today with the with the use of the social media, you can reach out to people and say this is not happening. हम एक बार में कैंडल मार्च करने के लिए, कुछ भी करने के लिए रेडी हो सकते हैं, but why can't we just stand up for what is right and ask for it? Okay. So have we been? So my question to the entire forum is: there are a lot of people I can see with businesses. Are you asking for the services which are rightly been given out to you today? Okay, Mr. Rahul has raised hand, and Abhishek has also. So Rahul first, and then Abhishek can speak. Yes, Mr. Rahul. Yes, I would just like to add one point to what this lady said right now. Rachna, yes. She was saying about are the services accessible? So I'll tell you today's case. She's saying that money is lying with banks, and government has floated some schemes via which we can access the money, right? Yeah. So today I had discussion with Vice President of Axis Bank Guwahati. So he happens to be Northeast head also, and the term. Just I'm giving one example to what she has said. The terms and conditions which they have laid. I went to take some idea and discussion regarding loan disbursement at this time, and the terms and conditions which they have laid is so difficult to understand and so critical to understand, and the period of say the loan, the tenure, it's so less that no one can afford to take the loan and pay such high interest. So maybe the person sitting on the top, the person sitting on whoever has formulated these things, they have done with good intentions, but it is rightly not accessible to the public. And no social media or nothing can change it, because if I post something about something, say I'm not being accessible to a bank loan or something, no one is going to pay heed to it. This is not a boys' locker room.
बेसिकली। Yes, Abhishek. सबको चटपटा मजा चाहिए ना, उसमें कोई मजा उसमें नहीं भी I है। think we can discuss one day कि what the media shows is just 1% of the cases. 99% is just hidden. Yes, Abhishek. Exactly. Rahul, like what you are discussing, I was speaking to this DCB banks, and I mean it's for the whole forum. Yeah, I mean, sure. basically they were telling us. I raised I think in our last meet also that nobody's accessing those loans despite being available. So we are currently formulating a mechanism to come into manufacturing, and we reached out to banks, a lot of banks. The kind of terms and conditions which Rahul was talking, that is very minute. I mean they've gone to such great extent, and it is really impossible even for business houses to accumulate working capital or the kind of corpus required to get the fund business moving. Like Rachna was saying very correctly, that people are also not using, people are not accessing. Even if you make it available, it is not going to happen. But most important thing is that ठीक है, हमने stimulus everything, हम लोग ने, we have initiated everything. Now, how many of these business people which are reaching out are going to concretely generate a lot of jobs desired, and also the kind of business whether it is going to be sustainable or not. Ultimately, it's all about पैसा and revenue. कि कैसे, and if we are not able to, आज के दिन में अभी आज बोल दिया कि make in India, and suddenly there is a huge throw on the entire various FICCI, CII and all other channels कि भाई this stimulus package has been out and this is how we should be taking it forward. But the whole topic of the entire business community is that even if it's accessible, banks are the one who's going to dissipate these loans, and banks are paying these loans for their own to reduce their repos with the RBIs. It is in a very खाली release करने से नहीं होता. So like for example, NABARD is releasing huge loans for agriculture. I'm doing a little bit of minute hydroponic project for pet project. I reached out to bank. I said I want to grow vanilla and asparagus. NABARD clearly said, Abhishek, we cannot finance you all this kind of projects because it is, even if it's greenfield, it doesn't encompass our thing. Why don't you buy a land and get, if you have a land, you'd work on it. And moreover, we are giving it only to farmers, only on fertilizers. The trick is that fertilizer is something which you have never seen it. वो दिखा नहीं जाता है. And it ultimately boils down, liquidates हो जाता है, किसी को दिखता नहीं है, and subsidy दिया जाता है on कागज and everything हो रहा है. Reality is very vast from, there are three. एक होता है कि हम लोग एक रूल्स बनाएं, एक उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करें, और प्रैक्टिस क्या हो रहा है उस रूल्स, उस लॉ का रूल्स को, is a complete different scenario. Because even if we create stimulus, or even if we create any form of availability of funds, people are not using it properly, and people are not even able to give a sustainable business model. हर आदमी को लगता है कि मेरा business, like I went to बैंक मुझे लगा कि मेरा बहुत अच्छा business model है. But ultimately, sustainability is what banks will look. Their security is also very critical because they have to ultimately pay back. Correct. So I think the few levels of things are happening. Like maybe ऊपर वाले ने दे दिया पैसा, बैंक ने भी कुछ कंडीशन लगा, उसमें TNC ऐड कर दिया. फर्स्ट लेवल पे TNC ऐड हुआ, सेकंड लेवल TNC ऐड हो गया, और जो लेने वाला है उसने अपना TNC ऐड कर दिया. ये तीनों का TNC अब मैच ही नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं. यस सर, यही ऐसे हो रहा है. तो मेरा ऐसा मानना है कि आई फील कि हम लोग गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है. गवर्नमेंट की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. रिक्वायरमेंट किसी भी गवर्नमेंट की दुनिया में सेफ्टी, कंट्री के लोगों को सेफ्टी देना, बाहर से डिफेंस या अंदर में पुलिस के थ्रू. दूसरा रिक्वायरमेंट होता है कि बेसिक एजुकेशन या पानी, बिजली वगैरह, वो भी बाद में नॉर्मली प्राइवेटाइज हो जाता है. तो गवर्नमेंट का काम होता है कि जस्ट मेक श्योर कि रोड्स हो, पावर रोड्स, ऑल दिस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू डू. बाकी सब प्राइवेट सेक्टर करे तो बेटर है. गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा जाता है वो मिसयूज ही होता है. तो अभी गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है. सारा जो पैसा गवर्नमेंट दे रही है, तो जो भी काम गवर्नमेंट कर रही है मोस्ट लाइकली उसमें थोड़ा करप्शन होगा, थोड़ा इनएफिशिएंसीज होगा, वेस्ट होगा, और मेनली पॉकेट भरेगा गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स का, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स का, उनके बीच के मिडिलमैन का. तो गवर्नमेंट का काम इज ओनली कि किक स्टार्ट करने के लिए इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट की जरूरत है. अभी जिस तरह के क्राइसिस में ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन एनी इकोनॉमी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड.
सो गवर्नमेंट हैज टू किक स्टार्ट। तो गवर्नमेंट ने कुछ पैसा का इन्फ्यूजन कर दिया कि कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं है, किसी को लोन नहीं मिल रहा है मिल जाएगा, किसी को जो भी चाहिए सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट के, बहुत सारे टैक्स रिबेट्स वगैरह मिल जाएंगे। बट दैट्स इट। अल्टीमेटली कोरोना हो या प्री कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना, आफ्टर कोरोना, अल्टीमेटली द इकोनॉमी हैज टू बी बिल्ट बाय द पीपल, एंड पीपल विद इन दैट entrepreneurs हो, and this is the best time for entrepreneurs to take advantage of the opportunity कि इकोनॉमी पूरी बैठी हुई है, सब लोग आराम से घर पे बैठे हुए हैं, इलाज करे, कंपनी जो बंद है, तो आप अपना स्टार्टअप शुरू करने का इससे अच्छा टाइम क्या हो सकता है कि बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, बड़े बड़े लोगों का कंपनी थोड़ा डाउन भी हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा। एंड स्टार्टअप्स के पास एक एडवांटेज होता है जो बड़ी कंपनीज के पास नहीं होता है। बड़ी कंपनीज के पास फिक्स कॉस्ट बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बहुत बड़ा टीम होता है, उनका पेरोल देना पड़ता है हर महीने, तो दैट्स अ डिसएडवांटेज। वो आपका म्यूट हो गया। तो स्टार्टअप वेरिएबल कॉस्ट पे काम करता है कि जितना कैश आएगा, रेवेन्यू आएगा, उतना ही हम खर्च करेंगे। तो दिस इज द गोल्डन एज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आई थिंक इंडिया में आ सकता है if people take advantage of it. The other big thing is कि पूरे दुनिया की बत्ती लगी हुई है, चाइना ने सबकी छुट्टी ली है, तो आज पूरी दुनिया, वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर कि बॉस आकर हमको कोई बचाओ, चाहे वो दवा बनाना हो कोरोना के अगेंस्ट में, मास्क बनाना हो, चाहे इकोनॉमी को रिवाइव करना हो। तो अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट फ्रॉम जापान टू ब्राजील एंड अमेरिका, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर इंडिया। तो इंडियन स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा एक मौका है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए भी, कि इस पोस्ट कोरोना एज के लिए अभी से तैयारी करें। कब आएगा पता नहीं, खत्म होगा, लेकिन अभी से वो लोग दे स्टार्ट यूजिंग। एंड किसी लास्ट कॉल में भी डिस्कस किया था कि मार्केटिंग का टाइम है, अभी अपनी अपनी स्टार्टअप्स है, कंपनी है, मार्केटिंग का करो। जब सेल आपका तब आएगा जब दुकानें खुलेंगी, जब शहर खुलेगा। बट अभी आप लॉयल्टी पे, कस्टमर लोगों का ध्यान रखो, कस्टमर सर्विस करो, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर इन बैड शेप। तो उस समय ट्राई टू मेक श्योर कि आप कम से कम लोगों को बहुत सारे, जैसे बड़े बड़े कंपनी क्या क्या है कि आप ये सर्विस फ्री, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन सर्विसेज बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी से फ्री कर दिया है, और बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशन फ्री है, ऑनलाइन दिस फ्री है। तो इसका फायदा उठाकर जो करना चाहता है वो भी करेगा, और जो रोना चाहता है वो रोएगा। बहुत सारे लोग बीच में सेटल होंगे कहीं। ओके, so I think we can go to specific points also. तो एक अल्कोहल का तो I think we discussed कि ठीक है, गवर्नमेंट का मजबूरी था, ये था जो भी था, और लोगों ने भी हेल्प क्या किया, वो अपना हेल्प ज्यादा किया, इकोनॉमी रिवाइव बाय डिफॉल्ट हुआ। Second thing is the shopping habit of people right now has probably gone down, and it's also because a lot of non-essential services are not happening, right? तो इसमें एक चीज है कि I mean दुनिया का कैश तो जैसा था वैसा कहीं ना कहीं the number sum total might be intact only. It's more about that flowing of those numbers has stopped. So can't common man try to keep running that number? I don't know, maybe do some kind of barter या कुछ मैंने आपके लिए ये कर दिया, आप मेरे लिए ये कर दो, इस टाइप का कुछ। anyone want to speak on this? शॉपिंग वगैरह पूरा हाथ दबा लेना चाहिए या थोड़ा सा हाथ खोल के भी रखना चाहिए? That also can help economy. Yes, Palma, you want to say something? Yes, इस शॉपिंग वाली बात पे तो नहीं, पर मेरा एक पॉइंट है जो अतुल बता रहे थे कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, क्या है। तो गवर्नमेंट पीएम आते हैं और कहते हैं कि एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो चालू रहनी चाहिए, उनके दाम नहीं बढ़ने चाहिए। और सेकंड पॉइंट पे अल्कोहल को स्टार्ट आप कर देते हो, तो आप इसको एसेंशियल मानते हो या नॉन एसेंशियल मानते हो? नॉन एसेंशियल मानते हो तो इसके दाम क्यों बढ़ाया आपने? नॉन एसेंशियल मानते हो तो इसको चालू क्यों किया? तो इट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट जो हम बहुत देखते हैं कि ये हो रहा है। तो अभी के लिए मैं जो आपका पॉइंट है मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभी जो कंज्यूमर रहने वाला है वो उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाने वाली है। और जो प्रायोरिटीज आप बोलते थे कि नहीं अब मैं कार लूंगा, वो कार तो मुझे लगता है आप
किसी के दिमाग में भी नहीं होगी अब मैं काट लूंगा। घर भी वो अपना फ्लैट। सो ये एक डायग्राम चेंज तो होने वाला है कि कैसे जाने वाला है, क्या हम आगे देखने वाले हैं, कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करेगा, वो एक पॉइंट है ही। तो सस्टेन वही कर पाएंगे जो अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर लेंगे। सो आई बिलीव कि जो चेंज को अडॉप्ट कर लेंगे, जो अपने बिजनेस मॉडल को रिविजिट करेंगे और चेंज कर लेंगे, वो सस्टेन कर जाएंगे। अपॉर्चुनिटी है, कभी भी कोई चीज गिरती है तो अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी होती है जो कि वो भी है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो जो बिजनेस मॉडल को चेंज कर पाएंगे वो सस्टेन कर लेंगे, मेरा ही कहना। करेक्ट। जैसा अतुल सर ने बोला ना, बिजनेस मॉडल चेंज करना is also not everyone's cup of tea. Like, you know, a lot of people are running with a baggage and things like that. A very simple example I can take is Jio coming with the 4G and all, before Airtel and all. Baggage था, headache हो गया उनको change करना, time लगा उनको। चेंज देखिए, आज हमें एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने माइंडसेट को चेंज करने की। आज जो हम अपने फ्यूचर देख के चल रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या करने वाले हैं, तो यू हैव टू कंसिडर कि आने वाले 20 सालों में जो हमारे बच्चे जॉब करने वाले हैं वो 65% ऑफ जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करने वाली, अभी आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो आगे क्रिएट होने वाली। आपको तैयार रहना पड़ेगा, ये नहीं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनने वाला है, डॉक्टर बनने वाला है, तो maybe not 65, 95 maybe after this crisis. यस, वो हो सकता है कि हमारे बच्चे जो जॉब करें वो आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। करेक्ट, राइट, सही। Okay, Mr. Syed has a comment. Please, Mr. Syed. Yes. Yeah, hi everybody. I think this is the right time they can remove the income tax so that there is a good demand. I say it's a very, very great opportunity so that they can create a lot of demand and people can just save a lot of money and they're ready to spend and they don't mind. Like Corona, this thing from the mind will be removed. That okay, now I have money, I can do whatever, I can start spending. So that will revive the economy. Okay. Very solid proposition on removing income tax, and if it gets even the idea, even at the farthest of the hindsight, if it gets implemented, it will be a ball game. I mean, it will be changing a lot with how we run our entire economy. But what could be explored is like, really bringing down GST to a common slab. That way also, it's like equivalently, agar you are offsetting one, you cannot, it's like weighing 1 kg to half a kg kind of thing. So I think if you weigh it down, bringing GST down also could help a little bit. I mean, of course, it is a good structure which they have implemented, but bring it in a common slab. Either you reduce income tax, I mean, you remove income tax, either way. Vishal, I have a Can point. I have share? Yes, Rachna. Then Mr. Neeraj can say. Yes, Rachna. Yeah. So I mean, removing an income tax looks a bizarre idea to me, and just as my personal opinion is, firstly, it will again, anyways, the entire concept of demonetization had failed already, and with the removal of income tax, it will go to the doomsday. Absolutely. The gap between the rich and poor is definitely going to be 4 times if the income tax is removed, because world plays on the theory of 80-20. So the 20 people who are holding the economy, they will again become more rich, and the poorest will end up being poorer only. Secondly, yes, putting up GST to a normal and reducing the GST could be a good option. But where will government find money if they remove the taxes? Where will government find money to fund the BPL class with the health, whatever bad state of health conditions we have, but whatever state they have, and they are being provided with rations and all of this, how are you going to plan to provide for all of that? Can I comment on this, Vishal? Yes. So income tax is a very pathetic thing, and I guess it should be scrapped, and government can sustain still. What many countries have tried is you can have a consumption tax. So if I'm a rich guy, if I'm
Mukesh Ambani, and if I have building $1 billion house, then maybe I should be paying a $500 million tax from that. If I am a rich guy and am I going to vacation and my own corporate jet aircraft, or I'm going to Bahamas or all the exotic places, I should be willing to pay 80%, 90%, maybe 200% tax. That's perfectly fine. And for a poor person, anyway, government is that they will take care of most of the basic needs. Be it your in the corona days, anyway, government is trying to deliver, like in UP and many other states, delivering food or whatever essential services need. So all the essential services can be literally by government, and all the luxury things which the rich people, middle class, upper middle class, they consume, they will pay the tax. But people will pay a tax depending on how much you consume. So if you're buying a Ferrari car or a very expensive watch or whatever, or an iPhone every day, these days when kids want to buy a new iPhone model every other month, okay, go ahead, do that, but pay the tax for it, and it's very expensive. Whereas the poor people, the things which the essential things for people, khana, pani, bijli, and all those things, they should be literally tax free. I mean, there should be no tax on that. So that way, it's like sounds like a socialist economy, but in after Corona, I think that's the type of economy we are already operating into that, and that makes sense. And this is the way it happens when India got freedom, a little bit of socialism, because the people did not have money to build factories or anything else. This is the same thing in America when also after World War, that's what they did. The government built all the factories and everything else. They gave a lot of jobs. There's a huge boom, industrial boom happened in the economy after the World War, and even during the World War, because of all the manufacturing or everything else. So manufacturing and services and everything will come back if the government scraps the tax. People, nobody likes to pay tax, but consumers should pay the tax. So if I'm consuming crores and crores of things, chocolate or jewelry and diamonds or whatever, I should pay the taxes. So that will level it out, in my view. Yes, Mr. Neeraj, you had a comment, please, and then Karthik can. Yeah, so I just want to put some numbers here. So, in last financial year, the collection from income tax to government revenues was around 22.7 lakh crores, which stands around 11% of total GDP. And the number of people who filed their ITR, it was around 5.5 crore, which comes to around 3% of the total population. वो 3% लोग आपकी जीडीपी का 11% सपोर्ट कर रहे हैं. तो मतलब इट्स बोथ साइड. मेरा मानना यह है कि इनकम टैक्स कैन बी स्क्रैप, व्हिच अतुल सर इज सेइंग कि हमारा कंजप्शन टैक्स ऐसी एक थोड़ी ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स की भी दी जाती है. बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला इसके बारे में. इवन सुब्रमण्यम स्वामी ऑल्सो gave a lecture on it कि इंडिया में ये सब स्क्रैप करके एंड वी कैन गो फॉर ट्रांजैक्शन टैक्स, कि जहां पे भी कोई भी लेन देन हो रहा है उसके ऊपर टैक्स हो, बजाय कि डायरेक्ट टैक्सेस के, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स होने चाहिए. तो 10%, 11% कोई बड़ा फिगर नहीं है, बट अगेन गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क ऑन अदर सेक्टर्स from where they can fill this deficit, and the main is manufacturing. चाइना की जो ग्रोथ स्टोरी है वो टोटली मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड है. हम उससे बच नहीं सकते हैं. सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री बन के इंडिया कांट कम्पीट, कांट सस्टेन फॉर लॉन्ग. एट द एंड मैन्युफैक्चरिंग ही वो चीज है जो बचा सकती है लॉन्ग रन में और सस्टेनेबल है. दैट्स माय पॉइंट. Yes, Mr. Karthik, you have a. Yeah. So what Mr. Atul said, and I think ये चीज मैंने पहले भी बोली थी, government is actually planning to एक higher tax slab charge करना to the ultra rich जो है इंडिया में. इसके बारे में पहले भी कहा था. Secondly, I basically had a question to ask. So long back, it is always said that कि Indian economy को एक चीज इंडिया में स्पेशली एक चीज हेल्प की थी, that is parallel economy, and layman language में बोलो तो black money. So what do you guys think is that parallel economy helping us during this time of COVID-19? And अगर कर भी रही है तो for how long do you think it would help us sustain? Yes, Deepansh has raised the hand. Please. Yes, Deepansh. Your mic is connected. I cannot hear you.
No, you have to connect to audio maybe. So meanwhile, I want to add something on that income tax reduction, income tax removal rather. So I think एक जो point हुआ कि ultra rich को ज़्यादा tax देना चाहिए. I think remove is a very big word. Obviously, it can be, the numbers can be tweaked कि इतने तक के ऊपर ही लगेगा tax या जो भी बाकी सब minimal देंगे. Yes sir. इसमें क्या है ना कि हम लोग इनकम पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि, और इंडिया में वो एक टेंडेंसी होगी, किसी के पास बहुत पैसा है तो लोगों के अंदर जेलसी आती है कि इतना पैसा है, इतना अंबानी के पास इतना और टाटा के पास इतना, मेरे पास क्यों नहीं, तो जेलसी फैल। इनकम को टैक्स नहीं, इनकम यानी कि किसने कमाया है उसको टैक्स क्यों करना? वी शुड इनकरेज कि ज्यादा इनकम हो, और अच्छी बात है। अभी हम लोग है इनकम को डी इंसेंटिवाइज कर रहे हैं हम लोग। वी शुड इनकरेज पीपल टू हैव मोर इनकम, जितना ज्यादा अमीर हो जाए। लेकिन कंजम्पशन पे टैक्स लगाएंगे कि इनकम कमाओ लेकिन दान कर दो, समाज सेवा करो, तो आपको क्या उसको बेनिफिट मिलेगा। तो टैक्स पॉलिसी शुड बी नॉट टुवर्ड्स इंक्रीजिंग इनकम, इंक्रीजिंग इनकम की जगह पे कंजम्पशन पे फोकस किया जाएगा, तो दैट विल सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम। स्पेंडिंग के ऊपर कि आप अपने आप जितना कमाना है कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब जब खर्च करोगे तो उस पर टैक्स लगेगा, और वेल्थ पे भी टैक्स लगेगा, केवल खर्च ही नहीं, इवन वेल्थ जमा करके भी रख सकते हैं। जमा करके भी आप रखते हो ना, तो आपके वेल्थ टैक्स बहुत सारे कंट्रीज में होता है कि वेल्थ टैक्स लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े पैसे वाले लोग, और कुछ लोगों को मैं जानता हूँ फॉर्चुनेटली, वो लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट खोल देते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर। तो बिल गेट्स का भी अल्टीमेटली नॉन प्रॉफिट के थ्रू ट्रस्ट में क्या है कि उनके टैक्स वगैरह उनको नहीं देना पड़ता है ज्यादा, नॉन तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है कि आपके हम इनकम को इंसेंटिवाइज करेंगे, आप जितना ज्यादा कमाओ अच्छी बात है, वेरी गुड, नो टैक्स। तो पूरे दुनिया के भी अमीर लोग दे वुड लाइक टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया, क्योंकि वहाँ पे टैक्स ही नहीं, जैसे सिंगापुर में और बहुत सारे कंट्रीज में होता है। सिंगापुर में भी आई थिंक टैक्स कम है, मिनिमल, दुबई, मिनिमल, मिडिल ईस्ट में तो जीरो ही है, मिडिल ईस्ट में जीरो है। तो देखिए पूरे दुनिया से लोग इन्वेस्ट करते हैं वहां पे, और कंजम्पशन जो है वो आपके कैपेसिटी पे है कि इफ यू वांट टू हैव 10 कार्स, नो प्रॉब्लम। इंडिया में बहुत लोगों के पास है, घर में 2 लोग नहीं है बट कार 4 होती है, तो ठीक है रखो, बट कार का जो टैक्स इतना ज्यादा है। तो आप देखते हो कि सिंगापुर वगैरह में, आप तो गए भी हो विशाल और बाकी लोग, कि सिंगापुर में कार खरीदना या चलाना है जो लग्जरी है, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज गवर्नमेंट कहे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा बना हुआ है, कार की क्या जरूरत है, उनको ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, सब कुछ के लिए अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट है, कार चाहिए, ठीक है, बहुत पैसे दो, टैक्स दो, एकदम 200%, 3%, 100% टैक्स दो, बिकॉज दैट्स अ लग्जरी आइटम, नॉट a basic need. That's what I wanted to do. Yes, Deepansh, you can try now. Vishal, I just want to add one point here. बहुत बोला जाता है मिडिल ईस्ट में कोई टैक्स नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रीजन रहा है कि वहाँ पे जो भी रूलर्स हैं, डेमोक्रेसी तो है नहीं, सो टू सस्टेन और जो एक पब्लिक के साथ एक रिलेशन बना के रखने के लिए, वो हिस्टोरिकली क्योंकि सारा ऑयल फील्ड्स और वो जो है वो सब रूलर्स के अंडर से जो भी उनके कंपनीज हैं या जिस तरह से भी वो इसको ऑपरेट करते हैं, लेकिन फिर भी 5% ऑफ जीएसटी वाज incorporated just a couple of years back in UAE as well. और अभी न्यूज़ है कि because of this corona crisis और oil industry is one of the biggest hit industry because of it. So they are also increasing from 5 to 15%. Okay. Yes, Deepansh, you have a comment now. I think you can try speaking. You are not audible. No. I think maybe you exit and enter, and maybe you can speak then. Yeah, I think that's the easiest way to do the troubleshoot. Yes, Mr. Rahul. Yeah, I just want to add one point to what regarding income tax. Already the rich are paying a huge amount of income tax. Hello? Yeah. Yeah, am I audible? Yeah, you're audible. Already the rich are paying a huge amount of income tax. The surcharge, which was 15% earlier, it was increased by 3% and 7% for different income slab, and current income tax, the net income tax payable by
the rich ones, the super rich ones, as they have categorized, it is 42.74%. So if you are earning 100 rupees, you are paying 42-45 rupees as income tax. So already the rich ones are paying a huge amount. The government is earning a huge in income tax. So there is no question of, changing the tax rate and putting some another kind of cess, say Corona cess or anything, which we are hearing on day-to-day basis on news. This is what I wanted to say. Sure. Okay, yeah. Dipansh, can you try speaking? Can you hear me now? Yeah, we can. Good. Hi, hi everyone. My name is Dipansh. आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें करी, सुनने में बड़ा मजा आया. इनफैक्ट मैं काफी सीख भी रहा हूँ आप सबकी बातों से. मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आज के हम लोग जिस तरह से पले बड़े हैं, घर के बड़े ही हमेशा से टैक्स रिटर्न फाइल करते आए हैं. तो मेरा क्वेश्चन, पहली चीज तो आप लोगों से ये है कि भाई क्या आप में से, आई एम श्योर कुछ ना कुछ होंगे ऐसे लोग जिन्होंने अपना खुद का टैक्स रिटर्न खुद से स्टेप बाय स्टेप फाइल किया है. एंड व्हेन आई से दैट कि खुद से स्टेप बाय स्टेप फाइल किया है, व्हाट आई मीन इज कि भाई या तो कंप्यूटर पे बैठ के और नहीं तो फिर पेपर फॉर्म्स लेके और स्टेप बाय स्टेप उसमें अपने नंबर्स डालते गए एंड देन अराइव्ड एट द फाइनल रिजल्ट कि भाई मेरा इतना रिफंड बनता है या नहीं बनता है. तो जब आप कभी अगर आपको मौका मिले तो ये एक्सरसाइज कीजिएगा, तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि भाई गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत कुछ किया हुआ है टू हेल्प जो सारी बातें आप लोग कर रहे हैं. क्योंकि देखा जाए तो टैक्स रिटर्न है क्या एसेंशियली? टैक्स रिटर्न बेसिकली ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसमें कि अगर आप उसको पूरा करते हैं तो गवर्नमेंट ये बताती है कि भाई मैं गवर्नमेंट हूँ, किसी भी गवर्नमेंट के पास दुनिया की उस देश की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की रिसोर्सेज नहीं होती. तो अगर आपके पास ये गवर्नमेंट की लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो आप उसके लिए जो आपका खर्चा पड़ता है उसके लिए हम आपको टैक्स में छूट देंगे. इसीलिए इवन दो बिग बिजनेसमैन इतने ज्यादा पैसे कमाते हैं, वो टैक्स फिर भी बहुत कम देते हैं फॉर दैट रीजन, क्योंकि उनका जो चैनलाइजेशन ऑफ फंड्स है वो इस तरीके से रहता है. तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मौका मिले कभी ना कभी तो आप सब अपने टैक्स रिटर्न को जरा क्लोजली देखिए और ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. इट्स नॉट दैट टफ, जस्ट ट्राई टू डू इट. अगर आपने लाइफ में एक बार भी ऐसा कर लिया तो आई थिंक यू विल बेनिफिट इमेंसली फ्रॉम इट. थैंक यू. आई सपोर्ट दीपांश पॉइंट. मैं पिछले 10 साल से खुद से अपनी ITR फाइल करता हूँ. बहुत सारी इस तरह की छूट होती हैं. अभी भी एक 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है पिछले 2-3 साल से. और ही इज वेरी, आपको छूट है, आप अपना घर बनाइए, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दैट. बहुत सारे और भी उसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, कुछ ATC, कुछ ये कुछ वो. तो गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अ लॉट इन ऑल दोस फैक्टर्स. जिसको जिस तरह की जरूरत है, कोई अपने पेरेंट्स का अगर मेडिकल इंश्योरेंस करता है उसको छूट है, किसी के घर में कोई हैंडीकैप पर्सन है अगर वो उसकी मेंटेनेंस कर रहा है उसको छूट है. बहुत अलग अलग वेरिड तरीके से गवर्नमेंट छूट देती है इनकम टैक्स में. तो वो भी एक वही तरीका है, सपोर्ट करने का तरीका है, जहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको बेनिफिट दे रही है. मैं एक बात और बोलना चाहूंगा that thank you Neeraj for saying all those things. मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा कि a lot of people have rental properties for example, कि भाई आपका एक घर आपने रेंट पे दिया हुआ है, दूसरे घर में खुद रहते हैं, लेकिन जो जनरल प्रवृत्ति है लोगों की वो ये हो जाती है, इट्स लाइक दिस कि आप सड़क पे जा रहे हैं, अगर आपने किसी पुलिस वाले को 100 रुपए दे दिए तो उसको तो आप करप्शन में एक एवरेज इंडियन गिनता भी नहीं है 100 रुपए देने को. ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर आपने रेंटल प्रॉपर्टी है आपके पास, सबसे पहली इंटेंशन क्या रहती है लोगों की कि भाई हम उसको टैक्स में रिपोर्ट ही ना करें, भाई उस इनकम को कैश का कैश ही खर्चे जाए और हम अकाउंट में शो भी ना करें. तो एज अ रिजल्ट एक तो हम डेफिनेटली टैक्स की चोरी करना, चलिए कोई बात नहीं अगर कर भी ली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उसको शो करते हैं तो अगर आप, बिकॉज इट इज एन इनकम जनरेटिंग एसेट, उस केस में उस पर कुछ रिपेयर वर्क भी होता है या उसको बेटर बनाते हो किसी भी तरीके से थ्रू कैपिटल एडिशंस या फिर थ्रू एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस या इवन टू मेक इट मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली, जो कुछ भी आप करना चाहते हो वो सारा का सारा पैसा आप अपने टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट कर सकते हो ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े. तो इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे क्लॉजेस हैं जैसा कि नीरज जी ने बताया. तो अगर आप सब लोग एक्सप्लोर करेंगे तो मे बी आप सब अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस को बहुत हेल्प कर पाए.
correct. एक चीज मैं बोलता हूँ इसमें, I think what Dipan said is very right. I think usually people who who are working and who file their own income tax may not look at this so much, but usually businessmen look at this a lot. They try to do that OPEX capex game in such a way that उनका tax almost minimal level पे चला जाता है, और थोड़ा देते भी हैं तो intentionally देते हैं वो लोग. Yes, Mr. Rahul. मेरा क्वेश्चन है दीपांश जी से. मैं खुद अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा हूँ. आई हैव बीन फाइलिंग इट सिंस 10 years और मैं कुछ 100 लोगों के और भरता हूँ हर साल, बट मैं लिंक नहीं कर पा रहा कि वो करेंट अपना जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उससे इस चीज को कैसे रिलेट करते हैं. आई मीन इनकम टैक्स, हाउ कैन यू रिलेट, आई मीन हाउ आर यू रिलेटिंग इनकम टैक्स रिटर्न विद द करेंट कोरोना सिचुएशन एंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर रिगार्डिंग द इकोनॉमी. राहुल जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ आपके लिए. होता क्या है कि दुनिया के जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वाज स्टार्टेड इन वन ऑफ द बिगेस्ट रिसेशन इन द 70s. अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बेसिकली नॉट नेसेसरीली कोरोना बट एक तरीके का क्राइसिस टाइम है. तो अगर हर कोई एक इनोवेटिव ढंग से सोच रहा है तो इस टाइम पे अगर आप जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहले आप उस गेम के रूल्स को समझने में टाइम बिताते हैं, तो वो आपको पे बैक टाइम सबसे ज्यादा बढ़ाएगा. सबसे ज्यादा पे बैक आपको उसका मिलेगा कि यू हैव प्लेड विद इन द रूल्स. तो जो टैक्स रिटर्न का रोल है वो ये है कि भाई हम कुछ भी करना चाहते हैं, हम यूजुअली डिटरमिन करते हैं कि भाई सबसे पहली बात ये कि उससे इनकम जनरेशन कैसे हो. ये एक लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है, तभी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल तभी फील करते हैं मोटिवेटेड इस काम के लिए कि भाई हम अपना एफर्ट और टाइम उसमें लगाएं. तो ये एक तरीका हो सकता है सिंपल, जो कि जैसा कि आपने कहा आप 10 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन करते तो आप आ रहे हैं. और मैं कहता हूँ कि आप एक एवरेज इंडियन से अबव सोचते भी होंगे इन चीजों के बारे में, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं सोचते और लेकिन करने की चाह रखते हैं कुछ भी, तो अगर वो इस तरीके से सोचेंगे तो मे बी दे कैन मेक देयर ड्रीम्स कम थ्रू थ्रू द गवर्नमेंट मनी. ये भी एक ऑप्शन है भाई. जी मैं आपका पॉइंट समझ गया. नीरज जी. हाँ, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से बताना चाहूंगा राहुल जी. देना तो है ही जो भी देना है, ठीक है. अगर आप उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोच के देंगे तो मन में शांति रहेगी और देते हुए अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें आपको दिखेगा कि ये कुछ चीजें हैं, गवर्नमेंट मेरे को सपोर्ट कर रही है, मेरे को हर चीज का जो मेरा बना है उसमें फिर भी still there are some discounts and government really wants to support me in those things. बिल्कुल like मैं एक एग्जांपल देता हूं. at the end profit loss में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, but channels will be different. विशाल जी, channels will be different. Yes Rahul. Yes. जी मैं एक एग्जांपल देता हूं. I used to work in a cement manufacturing company कुछ 5-6 साल पहले, ठीक है. तो वहां पे that was located in a remote area, so I used to get a remote area allowance. वो मेरे सैलरी का एक पार्ट था और उसका मुझे डिडक्शन मिलता था. तो ये एक आप जो कह रहे हो वो बहुत सही बात है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट बताना चाहता हूँ. पहला पॉइंट ये कि जिसका टैक्स ज्यादा बनता है, जो मैं इंडिविजुअल्स की बात भी कर रहा हूँ, सुपर रिच एंड द वन हु ओन्स बिजनेस, और बिजनेसमैन की भी बात कर रहा हूँ जो कॉर्पोरेशंस चला रहे हैं, लाइक कॉर्पोरेट कंपनीज चला रहे हैं. तो उसमें क्या होता है, वहां टैक्स पहले डिसाइड होता है और इनकम बाद में डिसाइड होता है. ये एक बहुत बड़ा विडंबना आप कह लो, या जो एक हमारा आयरनी है, ये हमारे साथ चले आ रहा है, ये पैरेलल है. नंबर 1 सुन पा रहे हो? हाँ, तो ये एक हमारे इंडिया में एक बहुत ऐसा सिस्टम है कि टैक्स को बहुत मजाक में लिया जाता है, जो कि नहीं लेना चाहिए. ऑफकोर्स जैसे दीपांश जी ने कहा, हमें सबको अपने आप को अपना रिटर्न, अपना कि गवर्नमेंट हमें क्या क्या बेनिफिट दे रही है उसके बारे में जानना चाहिए. दूसरी बात, टेक्नोलॉजी को लेकर, आजकल टेक्नोलॉजी इतना सुप्रीम हो गया है, सब चीज के परे हो गया है. लाइक एक वेबसाइट है, जैसे मैं नाम याद नहीं आ रहा, शायद क्लियर टैक्स, वो साल में मैंने पिछले साल का उनका डेटा पढ़ा था, दे फाइल मोर देन 50,000 रिटर्न्स. तो ऐसे सिचुएशंस में कहाँ लोगों को मौका मिलेगा अपना कुछ समझने का या फिर कुछ फाइल करने का. और लोग वैसे भी इनकम टैक्स को बहुत नॉर्मली लेते हैं. जब से फॉर्म 16A आया है, TDS सर्टिफिकेट्स वगैरह आए हैं, तो सीधा फॉर्म 16 से ही रिटर्न फाइल हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना मुझे समझ में आता है. इसलिए लोग सीरियसली नहीं लेते, खास करके सैलरीड क्लास.
बस ये बोलना। लाइक यस दीपांश आप बताओ। राहुल जी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। नीरज जी थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पॉइंट्स एज वेल। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। भाई लोग सीरियसली नहीं लेते, ये थोड़ा सा कल्चरल एस्पेक्ट भी है। भाई आप एक चीज सोचिए, आज की डेट में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई मेरे बच्चे को वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो मैंने अपने लाइफ में कभी करी थी। लेकिन ये भी एक उस सोच का पार्ट होना चाहिए कि भाई आज मैं जो कुछ भी हूँ उस ट्रेजेक्टरी के थ्रू गुजर के बना हूँ, जो कुछ भी आज मैं बनाऊंगा, तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम से कंप्लीटली एवर्स भी नहीं होना चाहिए उन प्रॉब्लम्स को। इफ अगर किसी के सामने एक समस्या आई है, वो उसकी लाइफ की समस्या है, वो उसकी लाइफ का राक्षस है, उसको उससे लड़ने दो, पहली चीज तो। दूसरी चीज एक ये भी है, रही बात टैक्स रिटर्न की, तो टैक्स रिटर्न एक ऐसी चीज है, अगर आप खुद करते हैं इन चीजों को खुद से, तो आप चीजों को समझेंगे। और जो आपने कहा कि भाई टैक्स पहले डिसाइड हो जाता है, वो बाकी चीज बाद में होती है। लेकिन ये मैं आपको बात बताना चाहूंगा, हमारे देश में अब जिस तरीके से चीजें डेवलप हो रही हैं, व्हाइट कॉलर पीपल विल सर्वाइव, और वही बिजनेस सर्वाइव करेगा जो गेम के रूल्स को समझता है। अगर हमारा सब कुछ जितने एक्सपेंसेस आए हैं वो इक्वल कर जाते हैं जितना टैक्स, गवर्नमेंट इज परफेक्टली फाइन विद इट। लेकिन एज लॉन्ग एज वी आर ओपन विद इट एंड हम टैक्स का 0 पैसा दें, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, पहली चीज। दूसरी चीज एक ये भी है कि इन जनरल इंडियन पॉपुलेशन में फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके इतनी जागरूकता कभी भी नहीं रही। और इसीलिए क्योंकि भाई अब तक लोगों की पेंशन हुआ करती थी, गवर्नमेंट जॉब्स में लोगों को बहुत इंसेंटिव्स मिला करते थे, पेंशन जॉब से सबको लगता था हाँ भाई ये हमेशा के लिए चलेगा। लेकिन ये सब चीजें कभी भी गारंटीड नहीं होती है। अब इवन गवर्नमेंट जॉब्स में एनपीएस आ गया, नेशनल पेंशन स्कीम, जिनको नहीं पता है उसके बारे में। तो कहने का मतलब है कि थिंग्स आर डेवलपिंग मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से लेगा और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्स्ट स्टेप होता है टू अंडरस्टैंड द रूल्स, तो वहां से ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। यस मिस्टर नीरज, आई थिंक ये एक और चीज है, ये रूल्स ऑफ द गेम शुड बी टॉट राइट फ्रॉम द स्कूल लेवल और वेरी इनिशियल कॉलेज लेवल। बहुत सारे लोग को तो सीखते ही है, जब जॉब लगा तब पहला बार लगता है क्या करना है, खुद से दे दो इसको 1000-2000 कर दो प्लीज टैक्स पर, और सामने वाला क्या करेगा। I just want to add this only. Actually जो हम जब आपने सुबह ये पॉइंट्स डाले कि what we can discuss, so creating awareness is one of the biggest job an individual can do for a society. ये सब चीजों के लिए जो अवेयरनेस की जरूरत है ना, वो मतलब हमारे जैसे लोग, अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। पिछले कुछ समय से आई एम मैनेजिंग अ टीम एज वेल। मेरी टीम में जब भी कोई फ्रेशर आता है, मैं उसके ईयरली जो उसका अप्रेजल होता है ना, मैं बोल देता हूँ कि भैया अप्रेजल का पार्ट है, यू हैव टू लर्न दिस होल प्रोसेस ऑफ टैक्सेशन एंड फाइलिंग योर आईटीआर। भले ही ये कंपनी का कुछ है, लेकिन मैं इसको जरूर देख के तेरे को रेटिंग देने वाला हूँ, तेरे को ये सीखना है। और थैंकफुली मेरे अंडर पिछले 3-4 साल में 5-6 न्यू ज्वाइनी जो फ्रेशर आउट फ्रॉम कॉलेज लोगों ने काम किया, एंड दे हैव लर्नड इट एंड दे आर रियली थैंकफुल फॉर इट। ये बहुत जरूरी है अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस और ये सब चीजों के लिए। इनिशियली बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे प्लान करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में 1-2 साल तो ये रहता है जितना कमाना उतना खाना है, पूरा का पूरा मंथ एंड में खत्म ही करना है। वो सब बहुत बाद में जाके रियलाइज होता है कि ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, कुछ पैसा जोड़ना भी है, कुछ घर वालों को भी हेल्प करनी है जिन्होंने 20 लाख रुपए की इंजीनियरिंग कराई है। तो वो सब बहुत जरूरी है। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिसको भी थोड़ा बहुत इसके लिए अवेयर कर सकें अपने इंडिविजुअल सोसाइटी में, जो भी चैनल्स, तो जरूर करें इसके लिए। इसी पे मैं नीरज के पॉइंट के सपोर्ट में बोलना चाहूंगा कि ये जो रिच डैड पुअर डैड एक बहुत फेमस किताब है, बेस्ट सेलर है, वो पढ़ना चाहिए बच्चों को, स्कूल में एटलीस्ट दे देना चाहिए, क्योंकि उसी में डिफरेंस बताया है। अनफॉर्चुनेटली मैंने खुद फॉलो नहीं कर पाया हूँ बचपन से, लेकिन अब सीख रहा हूँ कि रिच डैड और पुअर डैड का कहानी यही है कि जो नीरज ने कहानी बताई कि अवेयरनेस अगर होगी तो पीपल विल थिंक अबाउट देयर फाइनेंशियल वेलबींग। अदरवाइज हमारे जनरेशन में क्या था कि हमारे पेरेंट्स सारा कुछ दे रहे हैं, स्कूल की फीस हो, हमारा जो भी सारा खर्चा पेरेंट्स, हमें पता भी नहीं कि पापा या मम्मी जो भी इतना मेहनत करके कर रही हैं वो आ कहाँ से रहा है, उसके लिए उनको कितने जान देने पड़े, जो खर्च कर रहे हैं, सारा कष्ट भी है, कुछ हो रहा क्राइसिस भी है,
तो कहानी में आप सुनते हैं कि सोना मम्मी ने गिरवी रख दिया, ये रख दिया, वो रख दिया फिल्मों में, लेकिन वो रियलिटी से हम लोग काफी प्रोटेक्टेड रहते हैं, बच्चों को प्रोटेक्टेड, एंड दैट नीड्स टू गो अवे। जो नीरज का पॉइंट था कि बच्चों को स्कूल एज इन की बचपन से, प्राइमरी स्कूल, नॉट इवन हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल से फाइनेंशियल ट्रेनिंग शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। स्कूल में ऐसे होता है ना कि हम लोग मैथ, साइंस या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, सोशल साइंस एंड ये सारे, उसी में एक पार्ट फाइनेंशियल का भी पार्ट होना चाहिए। इनकम टैक्स जरूरी नहीं, बट ओवरऑल फाइनेंशियल लिटरेसी का एक कोर्स तो जरूर होना चाहिए स्कूल से ही, एज इन प्राइमरी स्कूल। दैट्स माय व्यू। Yeah, sure. Yes, Deepansh. Yes, please. हाँ जी, अतुल कुमार जी, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। लेकिन यहाँ तक ये जो बात आती है, ये थोड़ा मैक्रो लेवल की बातें हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स, और बहुत सारे टाइप के रिफॉर्म्स हैं जिसकी हर सोसाइटी में किसी ना किसी लेवल में जरूरत है। लेकिन टू सपोर्ट व्हाट यू सेड, मैं ये भी सोचता हूँ कि भाई a lot of what any child learns is also from their own home. अपने घर से ही आदमी जो देखता है वही वो सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, जीने के कितने तरीके हैं, ये चीज कैसे किसी को पता चलेगी? वो सबसे पहले अपने घर में ही देखेगा कि भाई पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, फोन पे किससे कैसे बात करनी है, वो चीज बच्चे घर से सीखते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं घर से लिंक्ड है। भाई ये चीज, इसमें स्कूल का कोई रोल है ही नहीं कि आपका फर्स्ट बैंक अकाउंट कब खुले या आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कब लो। लेकिन बट आई एम नॉट डाउटिंग योर पॉइंट, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर हम इस चीज को स्कूल पर छोड़ दें entirely, that is not true. नहीं दीपांश, I didn't mean that. Dीपांश, what I meant was कि किसी भी बच्चे के लिए उसकी पहली टीचर उसकी माँ होती है, उसके फैमिली में। सही बात। तो I completely agree with that कि स्कूल में जितना नहीं सीखता है बच्चा, अपने माँ से सीखता है, अपने घर में सीखता है। 4 साल तक जो सीखता है, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि बच्चा को जो सीखना होता है ना, असली वो 4 से 6 साल तक सीख गया होता है। बाकी तो सब डिटेल्स लग इन होते हैं, बाकी दे ऑल डिटेल्स जो कि गूगल पे सर्च किया सकता है। तो 4 से 6 साल तक बच्चों को जो डिसिप्लिन की हैबिट हो, चाहे फाइनेंशियल लिटरेसी की हैबिट हो, तो 4 से 6 साल में बच्चे सीखते हैं बोलने से नहीं, बच्चे देखते हैं। आपने जो पॉइंट बोला कि people are like children are like monkeys. वो देखते हैं कि पापा कैसे बोलते हैं, लोगों से बात करते हैं, मम्मी कैसे बोलती है, क्या करती है, and that's what they learn. तो चाहे वो फाइनेंशियल, चूंकि हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी और टैक्स की बात करें, तो सिमिलर चीज, पीपल देखते हैं कि माँ कितना पैसे को लेकर या घर के खाने को लेकर भी, या हर चीज को कैसे, सफाई कैसे रखती है, खाने को वेस्ट नहीं होने देती है, तो बच्चा सीख लेता है, वो हैबिट्स आ जाती है। देखता है कि नहीं, बहुत सारे फैमिलीज में है कि किसी को कोई चिंता ही नहीं, आया खाना बर्बाद हो गया, फेंका गया, बहुत वेस्ट होती, तो फिर बच्चों के लिए फिर उन चीजों की वैल्यू नहीं होती है। तो आई थिंक बिल्कुल सही बोला कि पेरेंट्स और फैमिली का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली इन द अर्ली डेज, कि वो अच्छी हैबिट्स डिसाइड करो। और आज के टॉपिक में फाइनेंशियल हैबिट्स भी बच्चों पेरेंट्स से ही देख के सीखते हैं। और उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। फर्स्टली थैंक यू अतुल कुमार जी। मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा जो कि आपने बहुत अच्छे से बताया कि भाई एक चीज हर पेरेंट को सोचनी चाहिए, एटलीस्ट हम अपनी जनरेशन में ये चेंज ला सकते हैं कि यार हमारा एक एम ये भी होना चाहिए, अगर हम बच्चे करने की डिसीजन लेते हैं तो हमारा एक एम ये भी होना चाहिए कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन समाज को दें, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डेवलप करना है उसमें हम अपना रोल अदा करें। इट इज लाइक सेइंग, आस्किंग कि भाई तुम मैनेजर बनना चाहते हो किसी कंपनी में, कोई बोलेगा हाँ भाई बनना, क्यों बनना चाहते हो, अच्छा मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं, बट इज दैट द ओनली रीजन? इफ समबडी इज डूइंग दैट जॉब, दैट्स नॉट रियली ट्रू। बहुत सारे लोग बहुत कुछ मतलब उसके थ्रू करना चाहते हैं। अगर आप एक पोजीशन, आप कभी भी अपने कंफर्ट जोन्स के बाहर अगर स्टेप अप करते हो तो फिर आप एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही जा रहे हो। इट्स लाइक दिस, योर मदर कुड नॉट बी वर्किंग एट होम, लेकिन अगर वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आपके लिए खाना बना रही है, दैट इन इटसेल्फ इज अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसको बहुत ही बारीकी से बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाया जा सकता है ओवर द इयर्स, ऐसा मैं मानता हूँ। Yes, Mr. Sayyed, you have a comment, please. Yeah, I want to. Yes, Yeah, Ratna, you can speak after Mr. Sayyed. Yeah. Yes, Mr. Sayyed. Yeah, I want to acknowledge Mr. Atul about his views for early adoption of the financial management. It's absolutely badly required.
that Rich Dad and Poor Dad. That's a wonderful book, and it should be read by every Indian at least once in a life at young age, especially at young age, so that he'll understand how things move and what are these financial things, how the rich and like Warren Buffett and all this, they completed hundreds of books at the age of 6 or 7 or 8. So if you don't if you don't make these terms awareness even at the school level, you'll just want to become an engineer or you want to become a doctor or something. Again, you are not into really what you want to do. So again, you come back square one to the financial things. So how you start a business? Okay, now you want to become you want to start a IT company. You want to do something. Again, you don't have the real knowledge where the money flows and how things move. So that's very, very important. If people really, especially in India, if this awareness is there, they will really, start at young age becoming self-dependent. They don't rely. They don't want to. They don't need to ask parents. They can just start investing in shares and stocks and all those things. They really know how things move in there, and they can take a minimum risk. So these are very, very important things that's whole world is running, and it's very important at young age. Yes, yes, definitely. So the topic that we're talking about, the education system putting financial literacy in the heads of students. And to put this point, I would firstly make this is absolutely again coming from a space of my various researches that I did. Schooling and education systems are somewhere, put together and used interchangeably for each other, which I should not. Schooling is done to give you certain kind of college. So it is basically, if you're going to school, you're going to get certain kind of a knowledge. When you enroll for a course, you get that certain kind of a knowledge. So school is following a particular pattern and they will give you a certain kind of a knowledge. If anything extra that you need to learn, either you need to make the student more curious about the subject, that is, ki usme. So I think I will just illustrate this with an example of the movie Three Idiots, where virus, I think, was punishing Amir Khan, and he had put in two terms, which is called Fahrenheit and something like that on the board, and the entire people of the classroom had started looking in the books and searching for the terms. And instead of that, nobody asked, we don't know what it is there on the board, and we'll be able to learn something new. So it is just that, as parents of 20 people around here, if we can actually make a difference by to our own students, children only, that आपके अंदर में अगर कोई स्किल है, अगर हम उसको अर्ली स्पॉट कर पाते हैं एज पेरेंट, तो आप उसको किस लेवल तक डेवलप कर पाते हो. सो इट इज वेरी वेरी सिंपली पुट कि अगर आप उसको फाइनेंशियल लिटरेसी भी देना चाहते हो, तो स्कूल में बेसिक जब मैथ सिखाते हैं ना, एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैव चिल्ड्रन हु आर इन क्लास 3, 4, आई हैव गॉन थ्रू, एंड द एल्डर वन इज इन क्लास 8. तो उनको बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम सिखाया गया था कि आप कहीं जा रहे हो तो आपको ये पैसे देने पड़ते हैं, उसमें आपको एक टैक्स भी देना पड़ता है, और उसको आपको ये भी है. तो ये स्कूल प्रैक्टिकल मेथड में सिखाती है, जब उनको एक स्कूल वर्कशॉप, मतलब इट इज टेकन एज अ एक्टिविटी इन द स्कूल, एंड दिस चिल्ड्रन आर टॉट that if you're going to the canteen in the school, you pay this much. Though the canteen food is tax free, but there could be some amount of tax which has been put into it, right? So all these concepts are taught. Now taking that concept, how we can integrate into the income tax system is about the parents, and it only happens at the senior level because the mental development and the maturity level of the student has to go that high. So आप उसको स्कूल और एजुकेशन के साथ में मिक्स कर देते हो, अगर आप अभी प्रिलिमिनरी एज पे उन पे डालने का कोशिश करते हो, तो they have to have certain level of maturity before they are able to accept it. And probably आप उसको घुमा फिरा करके किसी और तरीके पे एक्टिविटी पे डाल के अगर आप करते हो, तो उसका इम्पैक्ट कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है, rather than making it as a pressure in the school. So very good point. Activity wise, yes. Yeah. Yes, so these are life skills activities which are to be taught in a life skill manner.
क्लेनिनेस हम लाइफ स्किल के साथ में सिखाते हैं. So managing your finance is also a thing. There is a children entrepreneur. There is a bank which supports बच्चों का piggy bank. And the bank has come up with a fund which says कि अगर 1 रुपया 2 रुपया भी है तो अगर ये बैंक में जमा करते तो उनको एक कुछ कार्ड मिलता है. I don't remember. I think Kotak came up with something like this or HDFC came up with something like that. That junior banking system के साथ में they had come up, and it was very beautiful. They could be taught banking in that manner. Exactly. मुझे रचना जी की बात से 9th 10th में एक शेयर्स एंड डिबेंचर्स का चैप्टर होता था मैथमेटिक्स में. आई थिंक 10th में होता था, मुझे याद नहीं है. मुझे वो याद आ गया. वो कभी समझ नहीं आया उस टाइम पे, और वो बहुत पता नहीं अजीब लगता था. कुछ क्या ये बस रट लो इसको क्योंकि ये एग्जाम में इसका क्वेश्चन आना है. लेकिन लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्टेड लाइक रीडिंग अबाउट शेयर मार्केट्स, मैं कॉलेज में जाके मैंने वो स्टार्ट किया. And even during second year of college, I even started investing in share markets. तो उस टाइम फिर वो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाई. So it's a really good point कि जो practical approach towards learning है वो बहुत जरूरी है इन चीजों को लेके, क्योंकि ये बहुत weird रहती हैं ये side terms जो कि समझने में इतनी easy नहीं है. सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी. बहुत लोगों को तो पता नहीं कब तक क्या क्या समझ में आता है. यस दीपांश. सॉरी, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि रचना जी आपका पॉइंट बहुत अच्छा था. अतुल जी, राहुल जी और बाकी सब लोग जो सुन रहे हैं, आप लोगों ने आज बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इस LWT के इस इवेंट में आने का. फर्स्टली सो थैंक यू ऑल फॉर डूइंग दैट. सेकेंडली मैं एक बात और बोलना चाहता था कि जो इट्स लाइक दिस, अगर मैं आपको ये कहूँ कि बनाना का टेस्ट, केले का टेस्ट या आम का टेस्ट स्वीट होता है, तो मैंने आपको बता तो दिया कि वो स्वीट है, लेकिन वो स्वीट एक्चुअल में क्या होता है वो आपको अपनी ही टंग से पता चलेगा, किसी और के बताए हुए से या किसी और के एक्सपीरियंस से नहीं पता चलेगा. सो द थिंग इज, इट इज ऑल्सो अबाउट मेकिंग द मिस्टेक्स अर्ली, क्योंकि जितना जल्दी आप मिस्टेक्स बनाएंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे और उतना बेटर सीखेंगे. सो इट इज ऑल अबाउट अ journey of learning firstly, and that is what this whole thing is about, that learning while traveling, कि भाई हम जैसे जैसे travel करते हैं through life, let's learn as much as we can, absorb as much as we can. and इसी के साथ मैं आज मतलब exit करना चाहूंगा, मुझे 10 मिनट में कहीं और मेरी appointment है. but thank you all, you all are really doing great. Thank you very much. Thank you. So इस चीज पे आई थिंक ये एक बहुत अच्छा चीज निकला हमारे डिस्कशन से, दैट वी कैन एटलीस्ट एज अ कॉमन पर्सन और let's say person with limited resources can at least make a difference to our surroundings, जो भी people we know, giving them some literacy जो हमारा strength है, but it's not something that we are sharing as much as we should have been. And this financial literacy and things like that should be done at a very young age, and like Dipansh was saying, and like making mistakes early, or making people do those mistakes with a smaller amount of money. And parenting can help, maybe schools, colleges can do some workshops. They are doing also, I think, but maybe it can go to the next level. और कुछ points. Yes, Mr. Rahul, बताइए. Just want to add कि रिच डैड पुअर डैड मैंने भी पढ़ा है, और इसके साथ भगवत गीता का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा. तो विवेक बिंद्रा करते हैं ना भगवत गीता विद बिजनेस. एक्चुअली विवेक बिंद्रा जी तो अब करते हैं क्योंकि हम लोगों को स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, और हम ये बार बार कहते हैं कि ये स्कूल लेवल पे होना चाहिए, बिकॉज हमारे टाइम पे ये नहीं था. हमारे टाइम पे अगर कुछ थोड़ा सा भी होता, तो अभी तो शायद काफी डेवलप हो गया एजुकेशन सिस्टम, लेकिन भगवत गीता प्लस रिच डैड पुअर डैड बहुत अच्छा रहेगा. एक्चुअली हमारे टाइम या पहले टाइम इसलिए भी नहीं था, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी उतनी, यूट्यूब नहीं था उसमें. बिल्कुल. अभी तो इवन इफ स्कूल इज नॉट डूइंग, मोस्ट इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑनलाइन. So all they need is, I mean, all the students need is, the right link. ये YouTube link है, ये link है, देख लो, and we'll do a quiz on this or whatever, and they will learn. Guide करने वाले भी चाहिए ना, like there should be someone to guide. ठीक है, वो तो initial food for thought, सबको नहीं मिल पाया शायद.
मुझे दीपांश जी का थॉट प्रोसेस और उनके बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा, और रचना जी का भी। Thank you. Atul ji bhi thank you, Neeraj ji. I'll also exit. Thank you so much. Okay. Yeah, we are finishing in 5 minutes anyways. Just trying to cover a few more points. एक चीज और है, I think एक तो स्किल के बारे में हमने बात किया. During this lockdown or during this crisis, I think there are a lot of skills that people probably can learn to make them more future ready. ठीक है, instead of getting stuck up with the past. So जो मार्च का सिचुएशन था, 10-15 मार्च तक जो था, वो आने में शायद 1 से 2 साल लग जाए. तो according to you, let's say, I mean, anyone can speak here. What skills are the ones you would like youth or like anyone actually to learn in this time, so that they can at least survive, or मतलब एक skill या 2 skill जो मतलब like let's say top skills according to you. Yes, Rishabh. Hello, Vishal. Yeah, actually, मैं like skills के बारे में तो बता रहा हूँ, but like मैं अभी ये सोच रहा था कि like अभी जो training centers है skills development वाले, like वो mostly NGOs handle करते हैं, right? So private भी होंगे, but anyway, yeah, continue. Yeah, but like अपन like मैं कुछ ऐसे अपन चीजों पे work कर रहा हूँ, like कि अपन like हर जगह ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, like एक प्राइवेट कंपनी होगी, ओके. सो अपन like 12th के बाद में बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अच्छी like हाई डिग्री के लिए जा पाते हैं, और जो कि बाकी जो लोग होते हैं जो रूरल इंडिया के लोग हैं, या फिर वो लोग हैं, या तो वो खेतों में जाते हैं, या फिर like छोटी मोटी दुकानों पे जॉब करते हैं, रेस्टोरेंट में छोटे मोटे like ऐसी जॉब मिलती है फिर उनके पास, ठीक है. तो like वो अपने पास आ सकते हैं, ठीक है. अगर अपन ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, उससे क्या होगा कि हम उनको एक स्किल ऐसी सिखाएंगे जो उसकी लाइफ टाइम काम आएगी, जैसे लाइक कुकिंग हो गया, या फिर लाइक टेलर का काम हो गया, या फिर कुछ भी एक ऐसी स्किल जिसमें वो थोड़ा 1 महीने में परफेक्ट हो पाए और आगे लाइफ टाइम वो उसमें काम कर सके. तो लाइक ऐसा कुछ लेंगे तो उससे क्या होगा कि लाइक पीपल सेल्फ लाइक डिपेंडेंट हो जाएंगे, और इससे क्या जॉब्स जॉब्स तो वित्तीय रहेगी, लेकिन है ना लाइक फुलफिलमेंट ज्यादा रहेगा, लेकिन हाँ. Okay, Rishabh, can I answer that question with you? Sure. ऋषभ, मैं तुमको बहुत सिंपल सी बात में बताती हूँ कि जो बच्चे एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पाते या कॉलेज की एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, सो आई थिंक देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स फ्रॉम कॉलेज आल्सो हु आर नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. एंड जो ये बच्चे होते हैं रूरल साइड से, वो लाइफ स्किल्स पहले सीखते हैं, पढ़ाई शायद बाद में सीखते हैं. तो सबसे पहली बात ये होती है कि उनको उस समय ये गाइडेंस मिलना कि उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ये ज्यादा जरूरत है. जो उस रूरल एरिया के आई थिंक आंगनवाड़ी या जो टीचर स्टाइल्स है वहां पे उनको मिलनी चाहिए, which they are not provided with. So a kind of a counseling, coaching support at that level needs to be supported to them. कि अगर आप छोटे घर का या जो वहां पे वुमेन उद्योग है, जो मिर्ची पीस के या पापड़ बना के या बड़ी बना के या स्टिचिंग करके या छोटे छोटे एग्रीगेशंस करती हैं इन सब को लेकर के, एंड दे रन द लोकल बिजनेसेस, इसको हम किस तरीके से स्केल अप कर सकते हैं. एंड देयर आर लॉट ऑफ केस स्टडीज ऑन इट, जो आप अगर गूगल पे सर्च करें तो आपको मिल जाएंगी. एंड इफ इट इज एवर पॉसिबल, आई विल शेयर इट विद विशाल जी एंड यू विल बी एबल टू सी इट. So what is important is education and life skills को mix ना करें, सबसे पहली बात. एंड स्किल में आपको अगर खेती करनी आती है तो बाजार में जाकर के उस खेती को बेचना भी आना चाहिए, राइट? तो आप, हो सकता है कि अब हर इंसान एक जैसा नहीं है कि उसको सब कुछ आता है, तो 3 मेन स्किल्स होती है इंसान की. एक तो प्रेजेंटेशन, एक तो सेलिंग स्किल. एवरीबडी हैज टू बी अ सेल्समैन. So एक selling skill is very very important. आप ब्रांड करो कि नहीं करो बाद में करो, but selling skills and the way selling has changed completely. It's not about telling people that कि ये पेन है आप खरीद लो 10 रुपए का है, बस वो benefits में नहीं है. The theory of selling has completely changed. You have to understand that, and which is very very different. So you need to understand, very simple,
you need to understand the marketing and the selling skill and whatever it is. As long as 90% of those startup businesses fail because they are not right on their selling skills. Right. I just just one more point. Like अभी आने वाले टाइम में काफी ज्यादा like manufacturing like अब इंडिया बनने वाला है, मे भी बने नहीं बने, like काफी फैक्ट्रीज बनेगी, तो उसके लिए जो स्किल मैन पावर चाहिए रहेगा, ठीक है, तो उसकी like वैकेंसीज काफी ज्यादा है, like हर जगह है, बट like क्या अपने पास इंडिया में उतने स्किल्स के लोग है? क्योंकि ये स्किल्स है जो अपन कोई कॉलेज में तो सीख नहीं पाते, जो मिडिल क्लास होता है, जो ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं अपन, वही करते हैं ये सारी चीजें, तो वो कहाँ सीखेंगे ये सारी चीजें? घर पे वो सीखेंगे नहीं, और लाइक वो अभी ऐसे कोई इंस्टीट्यूट में भी नहीं है कि जहाँ पे उनको वो सिखाया जा रहा है जो आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई भी कंपनी में फैक्ट्री में काम कर सके, तो उसके लिए क्या है फिर? ओके, सो इसके लिए भी मेरे पास में आंसर है. सो देयर इज वन ट्रेनिंग फर्टर्निटी ग्रुप which encompasses of 150 trainers at least, all right? So जो इस तरीके की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को मेंटरिंग करने के लिए प्रोवाइड करने के लिए रेडी है. For ऋषभ जी, period we will be taking in 10 students under at least 150. अगर 150 के अंदर में 10 बच्चे आते हैं तो 1500 बच्चे तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, या 1500 लोग हो जाते हैं, राइट? जिनको हम ये सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, बिजनेस माइंडसेट एंड इस माइंडसेट तरीके की ट्रेनिंग जाते हैं कि आप एक आईटी की स्किल लेके आ रहे हो, या आप डिजिटल मार्केटिंग की स्किल लेके आ रहे हो, या आ रहे हो, पर आपको एक बिजनेस खड़ा करने के लिए एक डिफरेंट स्किल चाहिए होता है, एक हब बनाने के लिए डिफरेंट स्किल चाहिए होता है. सो हाउ कैन यू बिकम अ स्मॉल लीडर इवन इन दैट proposition? We are trying to roll out a program under one of our banners. For that, I will share the details with Vishalji when we are having an absolute structure for it. Because as a trainer, coach, and a mentor and a psychologist, I have realized that corporate to campus to corporate trainings are not leading anywhere. Because half of the students attend, half of the students don't attend, half of them are over smart to even attend them. So, and they don't get an end-to-end mentoring. So we will put in a mentoring program for 3 months for all these people. And for these people, we have to get people like you to come and refer to us. That कि मैम हमारे पास में ये 10 बच्चे हैं, ये, and all industry retired experts are able to do it, are willing to do it. So they have been at very high positions, they have seen life and experiences, and they have been there. Yes, Sanket, you have been raising hand for a while. Please. Just one small point, Vishal, I want to add. एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू हुआ था कुछ साल पहले, and it's running multiple centers in Gurgaon, what I know. और ऐसा ही एक स्किल यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिक उसका नाम मुझे याद नहीं है, स्किल यूनिवर्सिटी ओपन हुआ है राजस्थान में. बहुत कुछ काम किया जा रहा है ऑलरेडी इस एरिया में, और जो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसमें गवर्नमेंट बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है. इफ यू वांट टू गो इनटू दैट फील्ड एंड यू वांट टू हैव दीज वोकेशनल प्रोग्राम्स फॉर people like who wants to join some industry or based on that, और उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहता है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको जो इंडस्ट्री से प्लेसमेंट्स और वो सारी जो फैसिलिटीज हैं उनमें भी काफी कुछ अच्छी मतलब इसमें सपोर्ट है इंडस्ट्री की तरफ से भी. So there are programs around it, just you need to search them. Yeah. Yes, Sanket. Yes, Vishal, coming to your point, जहाँ पे आपने बोला कि what are the skills which students need to develop during these times. So apart from the definitely salesmanship and marketing, I guess there's the most important thing which student needs to learn, which is financial literacy. When I completed my college and entered the entrepreneurship journey, the only thing I believed was to be good at salesmanship and marketing. Until the time I realized that the financial literacy is equally important. I started researching, started reading self-help books about it, and still I guess there's a long way to go to complete this journey on financial literacy. But I'll encourage everyone to to give equal importance to the accounting
and finance as you give to the marketing and sales, because these are also pillars of entrepreneurship. Definitely, if you're not good at sales, no matter what, you're gonna fail. But it's like what I have observed in my life is accounting and finance are like the directors of the film who you cannot see on the screen, big screen, but if they are not there, the movie is incomplete. The movie cannot be. So definitely the actors are the salesmen and the marketing, but there should be a director and the producer who are like the finance and the accounting thing, which holds a very important role with anyone who, even if who wants to get into the entrepreneurship or who wants to get into a big post in a company. So through my experience, whatever our speakers shared, I'm absolutely agreeing with that. Just wanted to add that financial literacy should be something which needs to be given equal focus, because in long term, while you are not aware of how you are going to take company forward, or what you are going to do with the profits, or what numbers are there in the operations, no matter how good you are in salesmanship, your journey will be incomplete. So that's what I wanted to add. Thank you. Yes, Atul sir, last comment and then we'll close. तो रचना जी ने भी काफी अच्छी पॉइंट्स बोली कि सेल्स, मार्केटिंग, लाइफ स्किल्स, सारी चीजों के, फिर बाकी लोगों ने बोला कि मैंने ये देखा है कि हमारी जो करंट एजुकेशन सिस्टम इज मोर अबाउट ट्राइंग टू क्रिएट अस एम्प्लॉयज, कि चाहे बिजनेस में जाना हो, इंजीनियरिंग में जाना हो, जहाँ भी जाना, एम्प्लॉयज बनने के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग मिलती है स्कूल में, कॉलेज में, फैमिली में। एंड अभिषेक और हमने और भी लोगों को जोड़ रहे हैं उसमें, हमने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग भी चाहिए बचपन से लोगों को। और बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि यूएस में तो देखते हैं कि स्कूल में ही बच्चे होते हैं, तो उनको बीच बीच में उनको सोडा या बेचने का एक होता है, फन के लिए आइसक्रीम बेचने का एक्सपीरियंस देता है। बचपन से ही वो जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्यूचर में पूरे दुनिया में जॉब मार्केट डिसअपियर हो गए और कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर एंड एंटरप्रेन्योर्स से ही दुनिया चलेगी। तो एज सुन एज पॉसिबल बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपोजर एंड एजुकेशन मिलना चाहिए, और हम लोग उसी के लिए कोर्स भी डिजाइन कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स अनदर पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू ऐड टू दैट। Sure. Yeah, so I think today's discussion isn't complete fully. I think we have a lot more questions. We'll continue the same common man discussion tomorrow, and we can add more points though also. Okay. So, yeah, let's meet again tomorrow 10 p.m. Good night, everyone. Thank you.